लास्ट लेक्चर आप सबको याद है? लास्ट लेक्चर में क्या किया है हमने? एवरीवन, लास्ट लेक्चर में क्या किया है, कोई बता सकता है? सो वी हैव स्टार्टेड आवर सेमीकंडक्टर्स. ओके, सो इन द बिगिनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर इटसेल्फ हमने एक कंसेप्ट स्टडी किया है. क्या है वो कंसेप्ट? बैंड स्ट्रक्चर. सो व्हाट इज द रीजन और व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर इन अ मेटल, वो हमने देखा है. कोई बता सकता है उसका रीजन? मैंने क्या एक्सप्लेन किया था? So what happens if lot of atoms come to? Anyone, कोई बता सकता है? हम्म जब बहुत सारे atoms they come together and form a solid, what happens is their individual level, मैंने एग्जांपल लिया था सोडियम का. Okay, their individual level, what they do is everyone is having the same energy, but that cannot happen. So what they do is they split up the energy into very close by levels, and instead of one single energy level they form a band of energy levels. Okay, and these bands then we call them as conduction band, or we call them as valence band. So these are the two bands that are found in any particular material, either metal, semiconductor, or a insulator. Okay, then after that what we have done, we have differentiated how a metal, a semiconductor, and a insulator looks. So a metal looks something like this. Its band structure. Semiconductor looks something like this: conduction band, valence band. And insulator has a conduction band, valence band, energy gap, which is a little higher. So let us say it is greater than 5 electron volts, or maybe even 3 electron volts. This is of the order of 1 electron volt. So this is a semiconductor, this is an insulator, and this is a metal. So everyone remembers this? Yes? Everyone, do you Yes, remember this? yes, sir. Okay. So today what we are going to do is we are going to introduce a new concept, and that concept is called concept of a Fermi level. Okay. So सबको metals का band structure बता सकते हैं? So ये मैंने यहाँ पे निकाला है. This is a band structure of a metal. So here what is happening? This is half filled and half empty. So I can say conduction band and valence band overlap on each other, or they are one and the same. That also you can say. Conduction band and valence band, they overlap on each other. तो ये जो हमारा बैंड है, इसमें ये पूरा बैंड इलेक्ट्रॉन्स से नहीं भरा है. ओनली सम ऑफ द लेवल्स आर फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स. दिस रिमेनिंग लेवल्स आर एम्प्टी. ये मैंने क्वेश्चन मार्क से लिया है. नाउ ये जो लास्ट लेवल जो फील्ड है, लास्ट का क्या मतलब है? वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर लेवल. यहां से हम स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां तक आ गए, इलेक्ट्रॉन्स हमारे खत्म हो गए. ओके, सो द लास्ट लेवल जो हमने फिल किया है, दैट लेवल इज कॉल्ड फर्मी लेवल. इज दिस अंडरस्टूड एवरीवन? जो मैंने अभी क्या बताया है, ये जो हमारा बैंड है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो ओवरलैप हो गया है, दिस ये मैंने स्पेसिफिकली लिखा है बैंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल. तो ये जो लास्ट लेवल हमने फिल किया था, दैट लेवल इज कॉल्ड फर्मी लेवल, and the energy of that level is naturally, you will call it Fermi energy. So let us write down the definition. The topmost field energy level, EF. क्या definition है? Topmost field energy level is called Fermi level, and the energy of that level is called Fermi energy. So is this concept of Fermi level सबको समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूँ? Yes, फर्मी लेवल का कंसेप्ट अंडरस्टूड है सबको? एवरीवन, हेलो? Yes, sir. ओके, फर्मी लेवल सगळ्यांच्या लक्षात येते? ओके, नाउ this definition of Fermi level, topmost field energy level, is applicable only for a metal. So the question is,
what should be the definition for a semiconductor? Semiconductor के लिए हम कैसे define करेंगे? So for example, semiconductor का band structure, if you see, how is the band structure? This is the conduction band and this is the valence band. Now, what is the property of this? Here, the valence band is completely filled. Completely filled. Whereas the conduction band, this is conduction band, is completely empty. Okay, so this is completely empty, this is completely filled. यहां पर हमने क्या कहा था कि ये हाफ एम्प्टी है और ये हाफ फिल्ड है, तो इसके बीच में जो बॉर्डर है, द लास्ट फील्ड, उसको हमने डिफाइन किया था एज अ फर्मी लेवल. सो हाउ शुड वी डिफाइन द फर्मी लेवल इन दिस केस? कैन एनीवन टेल? हाउ विल यू डिफाइन फर्मी लेवल फॉर दिस पर्टिकुलर केस? कोई बता सकता है? एनीवन? एनीवन? हेलो, आर यू एबल टू हियर मी? यस. How will you define Fermi level? Anyone you can try. Even if you are wrong, then we are going to correct it. Does not matter. So how will you define Fermi level? Anyone, can you try? वैलेंस बैंड की जो ऊपर की लेवल होती है वो. Almost correct, not exactly correct. Anyone else? See, these are allowed levels. These are allowed levels. This is forbidden levels. करेक्ट? अगर ये फॉरबिडन लेवल नहीं होता तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को मैच करेंगे. करेक्ट? सो इट मींस ये लाइन और ये लाइन एक ही होते, इट वुड नॉट हैव बीन डिफरेंट, बट नाउ दिस फॉरबिडन गैप इज देयर इन बिटवीन. So what we will do is we will take the center of this forbidden gap and we will define this imaginary level as our Fermi level. Is this understood by everyone? मैंने क्या किया है? अगर ये forbidden gap नहीं होता तो क्या होता? The bottom of the conduction band and top of the valence band would have been one single level. So that would have been our Fermi level. But here we have a forbidden gap that is present. So because of that, what we had done, we had taken the center of the forbidden gap and we have said that is our Fermi level. So is the definition clear? So in the case of semiconductor, how will it define the Fermi level? Imaginary level in the center of valence band and conduction band. इसको हम prove भी करेंगे. So this imaginary level, suppose valence band has energy EV and conduction band has energy EC, then this imaginary level EF, if it is the center, it will be given as EV plus EC divided by 2. So this is our Fermi level for a semiconductor. Is that clear to everyone? Yes, sir. Okay. Now, so have you written the definition? Semiconductor के लिए. Now, can you give a alternate definition for a semiconductor, for a Fermi level? आप फर्मी लेवल के लिए एक अल्टरनेट डेफिनेशन दे सकते हैं क्या? नो नीड टू राइट दैट डेफिनेशन, जस्ट यू कैन डिस्कस और यू कैन टेल इन वर्ड्स. कैन यू टेल मी एन अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ फर्मी लेवल? Okay, let me ask you a question. Okay, everyone, please pay attention. So let me ask you this question. Below Fermi level, are the levels filled or are the levels empty? Can you answer this question?
Anyone? Will you try to answer this question? Below Fermi level, They are filled, sir. electron levels filled or empty? So the levels are filled, not empty. Let me ask a similar question. Above Fermi level, are the levels filled or empty? Empty. Again, I am asking similar question. So they are not filled, they are empty. Now let me again rephrase this question. Okay. Suppose I take a level below Fermi level. What is the probability that it is filled? Is it 1 or is it 0? 1. 1. Below Fermi level, the probability is 1. Let me ask a similar question. Above Fermi level, what is the probability that the level is filled? Is it 1 or 0? 0. Correct. So it means now we go to our next part. So in terms of probability, above Fermi level probability is 1, below Fermi level probability is 0. But ये एकदम simple logic है. There is a formula for this probability. We are going to discuss that formula. So what is that formula called, and that we'll discuss in the next slide. So have you written everything? ये लिख लिया है सब लोग ने? Let me save this first. Okay. So formula फॉर प्रोबेबिलिटी. मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि कौन से लेवल के हिसाब से प्रोबेबिलिटी 1 या 0 है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है. द नेम फॉर दैट फॉर्मूला इज, दिस नेम इज इंपॉर्टेंट ना, इट विल बी आस्क्ड फॉर योर एमसीक्यू. फर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. Okay, the name for that formula, thoda sa, it's a big name, Fermi Dirac distribution function. Okay, so what is this formula? This formula gives the probability that a level of energy E is filled. Okay, it gives the probability that the level of energy E, मतलब हमने पूछा कि suppose let us say this is our band, this is the Fermi level EF. Suppose I pick this particular level, let us say some energy, or suppose I pick this particular level, then what is the probability that the level is filled? PE. What is that particular probability? That is given by this particular formula. हमारे simple case में ये वाले probability 1 होगी, ये वाली probability 0 होगी. But certain situations ये direct 0 1 के बीच में कुछ value आ सकता है. For that this formula is there. So what is that formula? PE. नॉर्मली अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो उधर F लेटर यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए. ओके, बट रिमेंबर, इसलिए मैंने 2 लेटर्स यूज किए हैं. बोथ ऑफ दिस इज प्रोबेबिलिटी. मैं फिर से इधर लिख रहा हूं. ओके, प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय 1 डिवाइडेड बाय E रेज टू, मैं आई एम राइटिंग इट लार्ज,
Hello, hello. So are you able to hear Yes, me? sir. Yes, sir. Yes, कहाँ sir. तक कहाँ तक आपने सुना है? e प्रोबेबिलिटी raised का to फॉर्मूला। bracket e. Probability. Okay. Okay. EF is the Fermi energy. Okay. What is capital T? Anyone? Can you tell me what is capital T? It is Temperature. temperature. But what are the units? Capital T आपको पता है? They are in the units of Kelvin. Kelvin scale आपको सबको पता है? -273 डिग्री सेल्सियस सर स्क्रीन नहीं दिख रही। 0 Kelvin. Okay, okay, okay. Is given as 0 Kelvin. Huh? -273 degree Celsius is 0 Kelvin. Okay, can you tell me what is K? Normally it is written as K, but sometimes KB भी लिखते हैं, confusion नहीं होना चाहिए इसलिए. Can anyone tell me what is K? Bulk modulus. Bolts. हाँ, good. Bolts. अच्छा हुआ. Boltzmann constant. Okay, not bulk modulus. Is that okay? Boltzmann constant. ये I think there is a problem with this whiteboard. Just a minute. Are you able to see my screen? Meeting चालू है ना? बंद तो नहीं हुआ मीटिंग? हेलो, यस सर। मीटिंग चालू है ना? ओके ओके. मेरा कंप्यूटर में आई डोंट नो, आई एम सीइंग व्हाइट एवरीवेयर. जस्ट वील वेट फॉर 1 मिनट. हाँ, ये हैंग हो गया है. देयर इज सम प्रॉब्लम. ओके, आई एम नॉट एबल टू. ओके ओके, ठीक है. स्क्रीन दिख रहा है? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? Yes, sir. ओके ओके, आई होप इट विल वर्क. हाँ, कुछ प्रॉब्लम है. सो दिस इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ओके. सो ये हो गया हमारा पूरा फॉर्मूला. किस चीज का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, कि गिवन लेवल ऑफ एनर्जी ई फील्ड है या एम्प्टी है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. 1 है प्रोबेबिलिटी, या 0 है, या दोनों के बीच में कुछ है, 0.5, 0.3, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी विल डू, ये आपने लिख लिया सबने? अगर ये लिख लिया है तो आई विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. Everyone has written this? Yes. Yes. Please write this formula. This is very important for your MCQ. It will be important. I will save this screen. अगर गलती से पता नहीं. Are you able to? Okay, write this. Now, okay. What we will do is we will draw graph of this formula. हाँ, ये formula थोड़ा बड़ा हो गया है, तो हम इसको थोड़ा zoom out करेंगे. Okay, we will draw graph of this formula. Now let me draw something like this. So can you tell me the x-axis and y-axis of this graph? इस फॉर्मूला को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. कैन यू टेल मी एक्स एक्सिस पे हमें क्या प्लॉट करना है और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है? एनीवन? कैन यू टेल मी दैट? हेलो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या प्लॉट करेंगे हम लोग? ओके, सो ऑन द एक्स एक्सिस यू विल प्लॉट द एनर्जी, and on y-axis what will you plot? You will plot the probability. Okay. Now can you tell me how the graph will look? Anyone? Can you tell me how the graph will look? कोई बता सकता है? Okay. If you find it difficult, let me give you some simple cases. Case 1. Let us say
temperature T equal to 0 Kelvin. Now can you give me the answer for certain values of E? What is the value of P? Can you give me the answer? Let us say T equal to 0 Kelvin. Anyone? आप आंसर दे सकते हैं। केयरफुली इस ग्राफ को देखो, ठीक है? अभी भी अगर नहीं समझा है, लेट अस टेक E लेस देन EF। अभी क्या आप बता सकते हैं? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PE? इक्वल टू 1 अपॉन E raised to, will it be minus infinity or plus infinity? Can anyone guess? Anyone? Hello? माइनस इंफिनिटी। हाँ, क्या आएगा इसका आंसर? E raised to माइनस इंफिनिटी प्लस 1, लेकिन E raised to माइनस इंफिनिटी 0 है, इसलिए इसका वैल्यू आ गया 1। देन सेम T इक्वल टू 0 केल्विन, E ग्रेटर देन EF। इस केस में PE का क्या वैल्यू आएगा बता सकते हैं? PE इक्वल टू 1 अपॉन, नाउ E रेस टू प्लस इंफिनिटी आएगा या माइनस इंफिनिटी आएगा? विल इट बी प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी? प्लस इट विल इंफिनिटी। बी प्लस इंफिनिटी प्लस 1। सो डिनोमिनेटर इंफिनिटी है, इसलिए टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। इज दैट ओके? समझ गया सबको? यस। सो नाउ मुझे PE का वैल्यू पता है। EF से अगर कम होगा मेरा एनर्जी तो PE का वैल्यू है 1। अगर EF से ज्यादा एनर्जी होगा तो PE का वैल्यू है 0। तो मैं यहां पे क्या निकालूंगा? आई विल गिव अ पॉइंट EF, आई विल ड्रॉ हियर वैल्यू 1, क्योंकि 1 और 0 ही मेरा आंसर आ रहा है। सो EF से मेरी अगर एनर्जी कम होगी तो ग्राफ कैसा दिखेगा? उसकी वैल्यू होगी 1। और अगर EF से एनर्जी ज्यादा होगी तो ग्राफ कैसा दिखेगा? उसकी वैल्यू होगी 0। सो EF में एक एब्रप्ट स्टेप हमको मिल गया है। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ? अगर यह ग्राफ आपको समझ नहीं रहा है ना, तो उसके लिए मैं आपको ये देखो, यहां पे एक आपको सेमीकंडक्टर का, यहां पे मैंने आपको डायग्राम दिखा रहा हूं। दिस इज हमारा EF। EF ये हो गया हमारा ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? PE वर्सेस एनर्जी। ये सिंपल एनर्जी लेवल डायग्राम है। एनर्जी बढ़ गई, ऊपर ऊपर जाएंगे वैसे एनर्जी बढ़ रही है। ओके, नाउ अगर ये ग्राफ के हिसाब से हमको क्या पता चल रहा है? अगर टेम्परेचर 0 होगा तो क्या होगा? एनर्जी लेवल EF के नीचे सारे लेवल्स फील्ड हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी हो गई 1। तो यहां मैंने ये दिखाया है प्रोबेबिलिटी 1। एनर्जी लेवल EF के ऊपर वाला कोई एनर्जी लेवल होगा, सारे कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, तो वैल्यू होगी 0। यहां पे मैंने प्लॉट किया है 0। ये हो गया 0। ग्राफ का मतलब सबको समझ में आ गया है? इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड? सर एक बार प्लीज सर रिवाइज करोगे ग्राफ? यस। देखो हमको क्या करना है, हमको सर थोड़ा सा हड़ो, हमको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि एनर्जी Okay, sir. जैसे जैसे चेंज हो रही है प्रोबेबिलिटी क्या है। हाँ, तो ये मैंने आपको डायग्राम के हिसाब से दिखाया है, एक सिंपल डायग्राम निकला है। ओके, और उसमें आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर फर्मी लेवल के नीचे अगर आप देखेंगे तो सारे लेवल्स फील्ड हैं एट टेम्परेचर 0 केल्विन, इसलिए हमारी प्रोबेबिलिटी 1 है। फर्मी लेवल के ऊपर जो कंडक्शन बैंड है पूरा एम्प्टी है, इसलिए फिल होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। हाँ, लेकिन फॉर्मूला से यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हमने चेक किया है। तो हमारा अगर फॉर्मूला हम चेक करेंगे, अगर T इक्वल टू 0 होगा और एनर्जी लेस देन EF होगा
तो अगर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिल रहा है 1/e⁻⁻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 ⁻
EF के नीचे होगी तो प्रोबेबिलिटी 1 है, जो कि बिल्कुल सही है. हियर प्रोबेबिलिटी वी आर गेटिंग 1. सिमिलरली अगर एनर्जी EF से ज्यादा होगी तो हमको मिल रहा है 1/e⁻∞ प्लस 1. तो डिनोमिनेटर इंफिनिटी है, इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी 0 है. ठीक है. सो देयरफॉर हमको क्या मिल रहा है, अगर EF से ऊपर एनर्जी है, EF से ऊपर, यहां पे देखो E ग्रेटर देन EF, तो EF के ऊपर अगर एनर्जी है तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 0. और ये जो रिजल्ट है हमने ग्राफ पे निकाला है, ये हमारा EF है. EF के ऊपर वाली एनर्जी यानी राइट साइड, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 0. EF के नीचे वाली एनर्जी यानी लेफ्ट साइड, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 1. So is this graph understood by everyone now? Yes, sir. Okay. Now what we will do is, ये थोड़ा सा अलग कलर में करेंगे. If T is greater than 0, टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन, 10 केल्विन, 20, 50 केल्विन, 100 केल्विन, 1000 केल्विन, 5000 केल्विन, 1 मिलियन केल्विन, हाँ, ग्रेटर देन 0, तो हमारा ग्राफ कैसे दिखेगा, तो हमारे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है? नाउ इसके लिए एनर्जी कम होगी ज्यादा होगी, हम डायरेक्टली 1 0 ऐसा आंसर नहीं निकाल सकते, तो हम लोग एक पर्टिकुलर केस के लिए निकालेंगे. E इक्वल टू EF, अगर एनर्जी EF है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो क्या आप निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी 1/T ग्रेटर देन 0 है. हाँ, सो T नाउ नॉट 0, तो e⁻⁸ की जगह क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस 1 आएगा. लेकिन e⁻⁴ 1 होता है, तो इसलिए दिस विल बी हाफ, विच इज नथिंग बट 0.5. इज दिस अंडरस्टूड? ये Yes, प्रोबेबिलिटी sir. हमने 0.5 कैसे निकाला है. ओके, तो अभी लेट अस शो दिस वैल्यू 0.5. तो अगर अभी हमको दूसरा ग्राफ निकालना है, तो वो ग्राफ का शेप कैसे होगा, हम लोग थोड़ा लॉजिकली पता करेंगे, फॉर्मूला से पता नहीं करेंगे. लेकिन एट EF इट शुड क्रॉस दिस पॉइंट. इज दैट क्लियर? कोई भी ग्राफ का शेप होगा, वॉट एवर द शेप, T अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो EF पे प्रोबेबिलिटी हमेशा 0.5 होनी चाहिए. इज दैट क्लियर? इट शुड पास Yes, थ्रू. sir. Okay. Now, let us logically look at this situation. Suppose हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, T ग्रेटर देन 0. क्या होगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी. इज दैट करेक्ट? इज दैट करेक्ट? Yes, sir. तो Yes, sir. इसलिए some of the electrons which are near the top of valence band, they will get excited and they will go to conduction band. यहाँ पे चले जाएंगे. इज दैट करेक्ट? अगर इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा तो यहाँ पे होल क्रिएट होगा. सिमिलरली सम ऑफ दिस होल्स विल बी क्रिएटेड एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू कंडक्शन बैंड. तो ग्राफ में हम लोग कैसे दिखाएंगे, अभी ये वाली लेवल जो है, दिस लेवल अगर हम देखेंगे तो ये लेवल एम्प्टी है. इज दैट करेक्ट? पहले फील्ड थी लेकिन अभी एम्प्टी हो गई, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 1 से कम हो गई थोड़ी सी. द प्रोबेबिलिटी इज नाउ लेस देन 1. मतलब यहां के अगर हम कुछ लेवल्स देखेंगे तो कुछ लेवल्स हमको एम्प्टी मिलेंगे. क्यों? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैज एक्साइटेड एंड गॉन टू द कंडक्शन बैंड. पहले यहाँ पे लेवल्स एम्प्टी थे, तो यहाँ पे सम लेवल्स हमको मिलेंगे कि वो फील्ड है. तो प्रोबेबिलिटी नाउ ग्रेटर देन 0. पहले प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 0 थी, अभी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0. यहां पे प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 थी, वो प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 हो गई. तो ग्राफ पे हम कैसे दिखाएंगे, ग्राफ पे दिखाएंगे कि यहां नियर दिस बाउंड्री, ओके, नियर दिस बाउंड्री सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड एंड दे हैव बीन ट्रांसफर्ड टू अबव द बाउंड्री.
तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा. Is this understood? Is the meaning of this graph understood? Everyone? Yes, sir. सबको ये ग्राफ समझ में आ गया है? बाकी लोग, others, are you able to understand? No one is answering. Others, are you able to understand this? Huh? If what I tell you, if you do not understand, at least you can talk to your friends and then you can, okay. Okay. So again I am asking, is this point understood? अगर ये समझाए तो हम लोग ये ग्राफ के नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे. Yes, sir. Everyone? Understood. Okay. So suppose, so this is some temperature T1 greater than 0 Kelvin. Suppose I take some temperature, so यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ T1 greater than 0 Kelvin. Suppose I increase the temperature to some value T2, which is still higher than T1. Of course, greater than 0 Kelvin. तो ये ग्राफ कैसे दिखेगा? Some more electrons will be transferred to higher orbits. Is that correct? जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, more number of electrons. तो ये Fermi energy के ऊपर more number of electrons will be transferred like this, and more number of electrons will be removed from here. तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा for temperature T2 greater than T1. So is this graph now understood by everyone? Are you able to get this graph? So I Yes, think sir. what to do is you draw this graph properly. This graph may be asked in your MCQ. There is a chance. So I will keep this for 1 second, one minute, and you draw this. Then we'll go to the next part. Next part बहुत easy है, not very difficult. So draw this properly. Write this properly. Okay. So have you written it? Everyone? Should I wait? You can answer. Should I wait or should I rub this? किसी को कोई Done, sir. लिखना है? So should I rub this screen? Yes, sir. Okay. So before clearing the screen, I just want to ask, इसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? Any question? Any question you have to ask? It can be a simple or silly question, but still if you have कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? Are you very sure that you have understood everything? ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला के ऊपर So किसी को temperature पूछना है? less than अगर सर temperature less than 0 के होता है, then what are the conditions? टेम्परेचर 0 केल्विन के नीचे देयर इज नथिंग दैट एग्जिस्ट्स. Okay, sir. 0 केल्विन आपको पता है ना, ये Yes, केल्विन sir. है, डिग्री सेल्सियस नहीं है. Okay, हाँ दिस sir. इज केल्विन, नॉट डिग्री सेल्सियस. 0 Okay, केल्विन sir. के नीचे कुछ नहीं है. Okay, sir. Okay. Any other question? So good that you are asking, because this creates confusion. Okay. So I think no one has any question. Okay. Now, for a semiconductor, what we have done is we have considered that, let us say this is a conduction band. Let us say it has energy EC. Let us say this is valence band. It has energy EV. Naturally, valence band is mostly filled. Sometimes some electrons are there in conduction band. And we had assumed, or we had defined, that the center of this valence band and conduction band is nothing but EF. That is our Fermi level.
which is EV plus EC divided by 2. Now what we have to do is we have to prove this using our Fermi-Dirac distribution function. तो हम कैसे प्रूव करेंगे? So let us start. So let us say that NC, okay, is number of electrons in conduction band. Derivation बहुत ही simple है. NV is number of electrons in valence band. Now we are talking only of the outermost electrons. So the total number of outermost electrons, let us say N, will be naturally NC plus NV. तो इसको अगर हम N से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? NC डिवाइडेड बाय N प्लस NV divided by N equal to 1. Can you tell me what is this NC divided by N? कोई बता सकता है? Anyone? Anyone? What is this NC divided by N? And what is this NV divided by N? Can anyone tell me? Okay, let me ask a question. Suppose there are NG number of girls in a class and NB number of boys in a class. The total number is naturally NG plus NB equal to N. Suppose I pick a boy or I pick a girl from the class. What is the probability that that particular student, suppose I pick a student from a class, what is the probability that that particular student is a boy or a girl? How will you tell that probability? The probability that it is a boy, probability that it is a girl, what is that probability? Anyone? NB by N. NB by N and NG by N. Is that correct? Yes, sir. Okay. So it means what are these fractions NC upon N and NV upon N? Probability that conduction band has an electron. कंडक्शन बैंड का एनर्जी कितना है? EC. तो EC हमारा जो लेवल है, it has an electron. उसकी probability is given as NC upon N. Similarly, NV upon N is probability that valence band has an electron. उसकी probability, उसकी एनर्जी है EV. तो EV वाली जो लेवल है, ये वाली लेवल, फील्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? NV अपॉन N. EC वाली जो लेवल है, ये फील्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? NC अपॉन N. और NC अपॉन N और NV अपॉन N दोनों का एडिशन कितना है? 1. लेकिन हमारे फॉर्मूला के हिसाब से ये प्रोबेबिलिटी को क्या लिखते हैं हम? PEC. और ये वाली प्रोबेबिलिटी क्या है? PEV. तो आप PE और PEV इसकी वैल्यू, कैन यू टेल मी दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो आपको मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया था? उसकी वैल्यू बता सकते हैं कोई? एनीवन? व्हाट इज दैट फॉर्मूला? 1 अपॉन E रेज टू, इट वॉज E माइनस EF, मतलब जो भी एनर्जी होगी दैट एनर्जी माइनस EF. यहां पे हमारी एनर्जी कितनी है? EV माइनस EF डिवाइडेड बाय KT प्लस 1. सिमिलरली आप PEC की वैल्यू मुझे बता सकते हैं क्या? व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 अपॉन व्हाट विल बी द वैल्यू? E to the power EC minus EF. माइनस EF divided by KT plus 1. Is that clear? लेकिन हमको क्या Yes, पता sir. है? PEV
plus PEC should be equal to 1. Is that clear? So substitute this formula in this particular equation. What you get? Let us try to solve this. 1 upon E, solve with me so that you are not left behind. EF divided by KT plus 1 plus 1 upon, this is not exclamation mark, this is 1, e raised to EC minus EF divided by KT plus 1 equal to 1. Is that clear? So इन दोनों का एडिशन 1 है. तो अभी हमको EF की वैल्यू, आपको इक्वेशन दिया है मैंने, दिस इज आवर इक्वेशन, हमको EF की वैल्यू निकालनी है. तो कैन यू फाइंड दिस EF स्टेप बाय स्टेप? कैन यू सॉल्व दिस? फर्स्ट solve this fraction. What will you get? E raised to EC minus EF divided by KT plus 1 plus E raised to EV minus EF divided by KT plus 1 divided by E raised to EV minus EF divided by KT plus 1 इंटू, ये सिंपल एलसीएम निकलना है, हम लोग सॉल्व करते हैं ना, EC माइनस EF डिवाइडेड बाय KT प्लस 1 इक्वल टू 1. ये सही लिखा है मैंने? यस, इज दिस करेक्ट? हैव आई रिटन इट करेक्टली? आप सॉल्व कर रहे हैं साथ में? Yes, sir. Okay. So now let us expand this, all these brackets. I will take this to the right hand side, multiply both sides by this particular quantity. What I get? E raised to EC minus EF divided by KT plus 1 plus E raised to EV minus EF divided by KT plus 1 इक्वल टू, ये ब्रैकेट में एक्सपांड करूंगा, अगर एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा? ई रेस टू EV माइनस EF, सिंपल है बट थोड़ा सा केयरफुली लिखना है, KT इंटू ई रेस टू EC माइनस EF डिवाइडेड बाय KT प्लस ई रेस टू EV माइनस EF डिवाइडेड बाय KT प्लस E रेस टू EC माइनस EF डिवाइडेड बाय KT प्लस 1. तो अभी मैंने जो लिखा है सही है क्या? फर्स्ट चेक दिस एवरीवन, चेक इट इफ इट इज करेक्ट. आपको भी यही आंसर आ रहा है क्या? अदर्स, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग. Others? Yes, sir. Okay. So what do you get? See, this factor cancels with this factor. This factor cancels with this factor. One of the ones are cancelling with the one on the right hand side. So what remains is, let me write it like this, this here and this one here. E raised to, इसको मैं combine कर सकता हूँ, हाँ, E raised to EV minus EF plus EC minus EF divided by KT equal to 1. Correct? Okay. Therefore, what does it tell us? E raised to 0 equal to 1 होता है हमेशा. So इसका मतलब है EV minus EF plus EC minus EF equal to 0.
तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलता है? ई एफ इक्वल टू ई सी माइनस ई वी, सॉरी, ई सी प्लस ई वी डिवाइडेड बाय 2. सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कैसे किया है हमने ये? एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. इज दिस क्लियर? बाकी लोग, अरे अरे कोई आंसर नहीं दे रहा है, यस सो सर। गए क्या? ये एक सीआर है, हाँ, एक बॉयज का सीआर, एक गर्ल्स का सीआर, डाउट पूछने वाले एक ही बात करते हैं, बाकी सब एकदम ध्यान मेडिटेशन कर रहे हैं. हाँ, पूरा लॉकडाउन के बाद सब साधु संत हो जाएंगे मेडिटेशन में. सुनाई दे रहे हैं इंजीनियर लोग, बाकी लोग? चलो, आई होप एवरीवन इज लिसनिंग. ओके, सो so these things we have covered. Let us quickly take the attendance. Have you written this? Should I erase this? इसको क्लियर कर सकते हैं क्या एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सो सॉरी, आपका वो जो यूजी कॉन है वो कितने बजे तक है? So वो Till 3:30 तक होता है. It either lasts till 3 or 3:30 तो depending 4 upon से the. 5 हम लोग प्रैक्टिकल ले सकते हैं ना? Sir, 4 to 5 we have our language classes. Yes, sir. तो प्रैक्टिकल कब लेंगे हमारा? सर वीडियो अपलोड कर सकते? वीडियो अपलोड कर दूं? अगर वीडियो अपलोड कर दूं तो सब लोग देख लेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, ठीक है. ठीक है, चलेगा. आई विल अपलोड द वीडियो. एंड अभी ये वीकेंड में मैं सारे रीडिंग्स लेके आपको रीडिंग्स दूंगा, तो आपको जो मैनुअल है वो कंप्लीट करना है. ठीक है? यू Okay, कैन sir. टेक 15 days और 3 weeks, आराम से कर सकते हैं, बट वो कंप्लीट करना है. कल हमारा एक लेक्चर रखा है, आपको पता है ना? हमारे फेसा के बंदों ने बताया आपको? No, Students? sir. किसी ने आपको बताया नहीं है? फर्स्ट ईयर? अच्छा, मैं सर आपको वो बता रहा हूँ. मैसेज Not सर्कुलेट yet. नहीं किया है अभी तक. हाँ सर. अच्छा अच्छा, सुनो, मैं अभी शायद फाइनल हो गया है. कल 12 बजे से 1 बजे तक फाइनेंशियल फ्रीडम पे लेक्चर है. हाँ, कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब हम लोग इन्वेस्टमेंट क्या क्या कर सकते हैं एज अ फ्यूचर, जब आप जॉब लेंगे या अभी भी आपको जो पॉकेट मनी मिल रहा होगा उसमें से 500 1000 मंथली आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द वेरियस सिनेरियो, उससे रिलेटेड कल 12 to 1 लेक्चर होगा. तो आपका जो लेक्चर है दूसरा ईएस का, वो एडजस्ट कर लिया है हमने. ओके, सो इज दैट क्लियर? मैं आपको बता रहा हूँ एवरीवन. Yes, sir. Yes. तो Yes, अटेंड sir. करो आज शाम. मैं अभी Yes, थोड़ी sir. देर बाद लिंक जनरेट करके फिर वो हमारे फेसा के स्टूडेंट्स आपको सेंड करेंगे. ओके, ठीक है. सर ओके, हाँ बोलो. असाइनमेंट मधले सगळे क्वेश्चन्स करायचेत ना, चारीचे चारी? 6 ऑल 6 असाइनमेंट्स एंड ऑल नहीं. क्वेश्चंस यू हैव टू डू. हाँ ओके सर. इफ यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, इफ यू आर बहुत ही आपको डिफिकल्ट जा रहा है, तो मे बी आउट एनी 3 क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व. हाँ, सर Okay. बट इफ इट इज एनी थ्री केले चालेल का सर? तुम्हाला खूप प्रॉब्लेम असेल तर डोंट Okay, टेक sir. डिसएडवांटेज ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर क्लॉज. हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, उसका गलत फायदा मत करो. अगर आप 4 ही सॉल्व कर सकते हैं करो. अगर बहुत ही डिफिकल्ट जा रहा है आपको कोई क्वेश्चन, देन 3 out of 4 यू कैन डू सम पर्टिकुलर असाइनमेंट. हाँ, सारे असाइनमेंट का 3 सॉल्व कर दिया ऐसे मत करो. इज दैट ओके? ओके सर. आणि 10 तारखेच्या आधी 6 असाइनमेंट सबमिट करायचेत ना? ट्राय करा, थोडंसं लेट झालं तरी चालेल. ओके ठीक आहे. थँक्यू सर. बट यू हॅव टू कम्प्लीट इट. येस सर. Okay. So, and practical also you have to complete. And let me then quickly take the attendance. Okay. ओके सर. Where is the attendance? Yes. आज बहुत ही कम स्टूडेंट्स है. रोल नंबर, अच्छा, आपका क्वांटम मैकेनिक्स का कैसे चल रहा है? आपने कुछ पढ़ाई किया क्या? आपको जो समझा नहीं, एनीवन हैज रिवाइज्ड? किसी ने कुछ रिवाइज वगैरह किया है Yes, क्या? sir. Sir, मुझे थोड़ा सा ना ये स्क्रॉडिंजर इक्वेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है सर. चलेगा चलेगा. तो मैं एक सिलेबस हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली वी विल कंप्लीट ऑल आवर सिलेबस एंड देन आई विल कीप वन डाउट क्लियरिंग सेशन फॉर दैट. Okay, sir. So roll number 1, प्रेजेंट सर. 2, प्रेझेंट सर. 3, Shashank, 4,
Present, sir. 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, Present, sir. Present, sir. 11, Present, sir. 12, Present, sir. 13, Sir, 13 present. Aditya, 14, Present. 15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, Present, sir. Ishwari, 18, Present, sir. 19, Present, sir. 20, Present, sir. 21, Present, sir. Present, sir. 22, Present, sir. 23, 24, Present, sir. 26, Sakshi, 27, धीरज आहे का मीटिंग मधनं लेफ्ट झाले 27 आर यू देअर 28 प्रशांत आर यू एबल टू हिअर मी आवाज येतोय ना माझा हॅलो Yes, sir. हॅलो Yes, sir. Yes, sir. नाही येत काय सगळे 28 प्रशांत 29 Present, sir. 30 गायत्री गायत्री आहे का 31 Present, sir. 32 32 नहीं है 33 Present, sir. 34 Present, sir. 35 Present, sir. 36 36 Present, sir. 37 Chat box. 38 Present, sir. 39 39 40 आहे का 40 41 वेदांत Present. Present. 42 दोन माणसं देत आहेत त्याचे 42 Chat box. हां 43 Present, sir. 44 Present, sir. 45 Present, sir. 46 Present, sir. 47 भक्ती आहे का 48 Present, sir. 49 Present, sir. 50 Present, sir. 51 Present, sir. 52 Present, sir. 53 Present, sir. 54 Present, sir. 55 Present, sir. 56 Present, sir. 57 Present, sir. 58 Chat box. 59 59 60 60 पण नाही आहे 61 Present. 62 63 Present, sir. 64 Present. Present, sir. 55 Tejas Dikshit 66 Present, sir. 67 Present, sir. 68 Present, sir. 69 Present, sir. 70 Present, sir. 71 Present, sir. 72 Present. 73 Present, sir. ओके Sir, roll number 3 chat box मध्ये टाकले sir. ओके ओके थैंक यू एवरीवन हाँ ओके सो वील मीट टुमारो Thank you, sir. टुमारो कल हमारे 2 लेक्चर है ना कंप्लीट कर देंगे ओके साडा सर जेवायचं आहे का